Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kya Kya Kazi. My guest today was Amir Ali. Amir Ali is an artist, long-time teacher, and recently he's gotten into the NFT and crypto space. We get to speaking about what governs his art, what conventions he follows when he teaches, about coming into more success than you might be deserving of, and how to navigate those spaces, and above all else, the primacy of a why when attempting to navigate life. Enjoy. Three, two, one. Amir Ali, कैसे हो अमीर भाई? बिल्कुल ठीक. आप ठीक है? अल्लाह का करम है. लास्ट टाइम अमीर भाई वही मैं आपको बता रहा था कि लास्ट टाइम जो माइक्स थे वो बूम माइक्स थे. उसमें मसला ये था कि बूम माइक्स ना देन कैच ऑल साउंड. इस और आपको पता है ये साउंड प्रूफ नहीं है, ये कमरा बाहर अभी माशाल्लाह से है, वॉल्स और तो फिर सारी चीज़ों का जैसे अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया चहचहा रही थी. चिड़िया ने जो है आपका हाल पूछा, बोला अच्छा आप आर्ट करते हैं. उनकी ज़बान नहीं आती थी मुझे. कोई बात, मैं समझ गया था. अमीर भाई अल्लाह रहम करेगा. अमीर भाई सो मतलब जिनको पता है उनको पता है, बट brief introduction. You're primarily an artist. Yes. You do fine Concept artist. Concept artist. You do graphic design. Not really. I do illustrations. Illustration, graphic illustrations. And you are also a teacher. Yes. And then now, very recently, you've gotten into crypto and NFTs. And NFTs, yes. So it's been a year. It's been a year in crypto. हाँ. Altogether, और NFTs के अंदर it's been 6 months. ठीक है. And we were talking and I think it is fair to say कि आप जब क्रिप्टो के बारे में बात करते हो, क्योंकि वो इतनी उसकी जो ग्रोथ है इतनी रैम्पेंट है और इतनी वो है, मतलब तेज है. मतलब इतनी तेज है कि मेरी ज़बान इट्स अ हॉस्टाइल टेरिटरी जहाँ पर जंग का एनवायरनमेंट है. अल्लाह रहम करे. कि आपको नहीं पता है कि कब ख़त्म हो जाएगी और कब जो है वो शुरू हो जाएगी. सो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो होता है ना स्पॉइल्स ऑफ वॉर्स. वो उस तरह का है कि कुछ लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन वो किसी और का नुकसान है. मतलब यस. सो बेसिकली यू इन्वेस्टेड $1 okay in something. Okay. ठीक है. You got 2. All right. You got $2 back. You got 100% $2 back. हाँ. But वो $1 आपने किसी और का लिया है जिसने 1 लगाया था और अब वो 0 हो गया. So basically आपने $100 डाले थे which became $150. Okay. But एक कोई और आपका दोस्त था, उसने 100 डाले थे, उसके 50 हो गए. Right. Okay. So what you're talking about is so there's multiple currencies, right? If one goes up, the other goes down. ऐसा है. ठीक है. Fair enough. पर हाँ, हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इतना exponential growth होता है उसका कि spending 1 year in the crypto market or in the NFT market is like spending 10-15 years. लेगेसी जो मार्केट्स होते थे जिसमें आप बड़े you would become a big player. Yes. After 10-15 years. 1 साल in crypto is like that. Is the same. Is like that. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो we all जो लोग इस वक्त क्रिप्टो के अंदर NFTs के अंदर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन मौजूद हैं, so they like 20-21. सही है. Okay. And they have been very successful. एक 40-50 साल का आदमी जिसने literally he's skilled, he's talented, he's read hundreds of books, दुनिया घूमी है with a lot of experience and he's making a decent money. But then a 21 years old comes in और वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है in a year or two. Yeah. अब यहाँ पर there will be a lot of people will say कि यार बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त है, क्या गेम चेंजर है. बट मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम जो दिखता है ना, वो ये दिखता है कि you earning more than your skill set. That's dangerous. क्योंकि जब आपको जब हिकअप्स आएंगे when you'll hit a wall, तो you won't understand कि मुझे you don't have a cushion. You're being successful every day of your life. You've never been not successful. You've never been not successful. जब 2 साल तक आप उड़ते गिरोगे, अल्लाह खैर करे, तो बहुत बुरी तकलीफ होगी, बहुत बुरा लगेगा. आप बेसिकली बोल रहे हो, that's so interesting what you said. You said कि उनको उनकी औकात से ज़्यादा कामयाबी मिल गई है. Yes. Because you need to वही वाली बात है. Decent word में मैंने बोला. नहीं, हाँ. अभी decent से क्या? लेकिन अल्लाह रहम करे. But I think another interesting thing that you highlighted is
you need to work towards success. You need to build housing for it. ना जो आपने बोला कि आप गिरते हो फिर उठते हो फिर आप बढ़ जाते हो, आपको उरूज आता है, आपने जवाल भी देखे हुए होते हैं. जब आपने जवाल ही नहीं देखे, when the only thing you've ever done is win, so then you're not used to losing. And make no mistake, everyone loses in life. Yes. You know, Allah रहम करे, अल्लाह सबको अपने फ़रमान में रखे, लेकिन everyone loses in life. So मुझे बस वो ऐसा लगता है कि we are like what we are in the age, ये बहुत ही हम लकी हैं. अल्लाह का करम. आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इससे अच्छी एज ही नहीं थी ज़िंदगी भर, मतलब आज तक की हिस्ट्री के अंदर, कि वो इस एज में पैदा हो जाए. इट्स लाइक कि आप सिलिकॉन वैली में पैदा हुए हो और आप एक कंप्यूटर के शौकीन हो. सही. ठीक है. सही. सो एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा ज़माना है कि वो एक ऐसी एज में पैदा हुआ है जहाँ पर NFTs आर बूमिंग, द आर्ट इज़ बीन अप्रिशिएटेड, जो कि पहले इतनी नहीं होती थी, एंड यू मेकिंग मनी एज वेल. सही है. NFTs के अंदर. और NFTs का एक और अमीर भाई, आई डू वांट यू टू स्पीक ऑन दिस वन एस्पेक्ट फर्स्ट. NFTs का ये भी एक खूबसूरत बात है ना कि you don't have to sell your art. No. You have to sell an impression of your art. So you can keep your art and still sell it. Yes. और अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ आपको. प्लीज़. सो फॉर एग्जांपल यू क्रिएट एन आर्ट. सही है. आपने उसकी फिजिकल कॉपी बनाई थी. सही. एक जानने वाला आया, उसने देखा, आपका काम अच्छा लगा, उसने बाय कर लिया. सही है. बट आपने अब एक डिजिटल कॉपी बनाई है. यू पुटिंग अप इन फ्रंट ऑफ नॉट योर ओनली फ्रेंड्स, आप क्योंकि डिजिटल है, यू पुटिंग अप इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड. ठीक है. सही है. अगर आपका काम की अप्रिसिएशन बढ़ती है, सही है, तो जो ख़रीदार था जिसने आपका काम ले लिया था कम दामों में, अब सब उसके पास जाएंगे और कहेंगे यार आप ये डिजिटल कॉपी मुझे दे दो. सही है. सो दिल स्टार्ट बिडिंग ऑन द वर्क. ठीक है. वहाँ पर उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने तो आपका काम $1,000 में लिया था, अब वो उसको वहाँ से जो है वो $2,000 मिल रहे हैं, लेट से. ठीक है. सही है. बट नॉट ओनली दैट, आपको भी रॉयल्टी मिलेगी बीइंग एन आर्टिस्ट. ठीक है भाई, वो सब सही है, लेकिन ऑल्सो जो डिजिटली खरीद रहे हैं वो एक्सक्लूसिव ओनरशिप नहीं खरीद रहे. नहीं, यू नॉट हैविंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप. आपको सिर्फ एक इम्प्रेशन मिल रहा है. यू कैन नॉट यूज इट ऑन योर वैन, यू कैन नॉट यूज इट ऑन योर प्लेन. अगर आप कोई अपने घर में लगा सकते हो, बट आप उसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते. कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हो. दैट्स रिडिकुलस ना, बिकॉज क्या होता था पुराने ज़माने में, आप एक आर्टिस्ट थे, आपने एक पेंटिंग बनाई और मैं आया, मैं किसी सेठ का बच्चा हूँ, मैंने बोला मुझे खरीदनी है ये, मैंने आपको पैसे दिए, अब आपका सिर्फ नाम ही अटैच्ड है उस चीज़ के साथ, राइट? उसके अलावा कुछ भी नहीं है. आपको तारीफ मिलेगी, ओ अमीर अली बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, पैसे नहीं मिलेंगे. यू नो, I have the painting and I can do whatever I want with it. Right? That's no longer the case. क्योंकि because of the blockchain technology and all those things, open ledger है, so आपका जो लिंक है वो माशाल्लाह से कभी अपने आर्ट से टूटेगा ही नहीं टूटेगा. And because people can trace it, आजकल लोग भी बड़े, because they can trace it, they can be like, काजी हाँ ठीक है तुम्हें तो सही है, लेकिन अमीर को भी थोड़े पैसे मिलने चाहिए, उसी ने था, क्योंकि उसने बनाया. That's ridiculous, dude. मतलब आप सोचो ना यार, अमीर भाई हम इतने जवान भी नहीं है कि हमें ऐसा ज़माना याद ना हो जहाँ पे डायल अप इंटरनेट था. वाकई है. जहाँ पे आईफोन नहीं था. और कितनी रैपिडली ये चीज़ें चेंज हो रही है. सो वही जैसे आपने शुरू में बात की ना कि ये जो वर्ल्ड है ना NFT और क्रिप्टो का, इट्स सो फकिंग लाइक फास्ट कि आपको नहीं समझ में आता कि क्या हुआ. आप सोए हो, अगले दिन चेंज होगा गेम. हाँ, इसमें तो वही वाली बात है ना, रामेश भाई जब आए थे, that's what I was saying to him. I was like, in this world, someone like you can thrive. Yes. But someone like me, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं बोलता हूँ यार अब एक हफ्ता इस चीज़ पे बैठे हैं फिर फैसला करते हैं. ब्रो एक हफ्ता किसके पास है? ये रामेश का जो माइंडसेट है, जिस तरह की उसकी मेंटालिटी है ना, उसके लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट था. एंड लाइक वो तो ऐसे मुझे उसके लिए ऐसे लगता है कि वो बाकायदा ऐसी चीज़ के लिए बना था कि उसने पहले आर्ट सीखी, उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर आया तो यूट्यूब सीखा, उसके बाद ही ऑब्वियसली एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, तो ही नो हाउ टू रन अ टीम एज वेल. और अब वो जिस तरह से माशाल्लाह थ्राइव कर रहा है, सो दैट्स अनरियल. माशाल्लाह. मेरे एक बड़े हैं मेरे, वो ये बोलती हैं, शी सेज
कि बहुत गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स हाइंडसाइट में जब आप देखते हो ना, यू आर बिल्डिंग अप टुवर्ड्स देम, you know, because everything good is from Allah Mia in Quran Sharif, everything good is from Allah Mia, everything bad is stuff that your hands put forward. Because your hands put them forward, एक तरीके से you're making, like you're building towards that, जो भी बुरा होना है, right? और जो भी अच्छा होना है वो भी ज़ाहिर है. So Amir bhai, we were talking about how, you know, someone like Ramesh bhai seems like they're built for this. लेकिन फिर आपने for this age ना, मतलब the way he dresses, the way he conducts himself, everything. लेकिन फिर आपने एक interesting बात बोली, आपने बोला कि if you're not successful in whatever success is, whatever success is understood to be in today's day and age, if you're not successful in today's day and age, तो भी कोई मसला नहीं है. नहीं. क्यों? माइक थोड़ा प्लीज करीब कर लें. हमारे थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ़ आई सी माई पेरेंट्स, वो खुश है. दे डोंट नो क्रिप्टो, दे डोंट नो NFT, दे इवन डोंट नो कि किस तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग होती है. सो दिस इज़ लाइक वेब 2 पिछली ज़माने में. फेसबुक पे पोस्ट कैसे करते हैं यार, वो डिस्प्ले भी लगाना हमसे सीख रहे होते थे. बट दे आर हैप्पी, मतलब वो बिकॉज दे हैव बीन बिल्ड फॉर दैट फिजिकल एज जिसके अंदर हर चीज़ आपको एग्जिस्ट करनी चाहिए. गोल्ड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए. सो हम लोग जिस एज के अंदर बने हैं जहाँ पर हमारे पास फ्लॉपी से, CD से, USB, और फिर जो है वो सब कुछ क्लाउड के ऊपर आया, तो एक तो हमारे अंदर जो है ना वो बड़ी गुंजाइश है दैट वी इवॉल्व टू रैपिडली, स्विफ्टली. और अगर जिस चीज़ के अंदर अगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते ना, तो जो पीछे वाली चीज़ें हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं. लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, अराउंड मी एज वेल, दे आर हैप्पी. मतलब ज़रूरी नहीं है कि यू डोंट हैव टू बी सक्सेसफुल इन NFT और क्रिप्टो. सक्सेस इज़ ऑब्वियसली योर राइट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ से आ रही हो. सही. सो अगर NFT के अंदर इफ़ यू नॉट सक्सेसफुल इन NFT, इफ़ यू नॉट सक्सेसफुल इन क्रिप्टो करेंसी, दैट्स फाइन मैन, मूव ऑन. कोई दूसरी चीज़ करो जो तुम्हें पसंद, जो तुम शौक से करते हो. बिकॉज क्रिप्टो इज़ टू ओवरवेलमिंग. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स टू कंज्यूमिंग फॉर मी एज वेल, दैट आई नीड अ ब्रेक फॉर कपल ऑफ डेज आफ्टर 5 to 6 days. सही है. और वो 2 दिन के बाद जब मैं वापस से आता हूँ तो चीज़ें पाइल अप बहुत हो चुकी होती है. बट आई एम नॉट समवन हु गेट एंशियस, एंड मतलब मेरा एक आप ये कह सकते हो कि कैरेक्टर ऐसा है कि मैं ईजी रहता हूँ, ज़्यादा चीज़ों को टेंशन नहीं लेता हूँ. उस वजह से जो है वो आई फील के मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं करती, या मुझे वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं घुमा देती है मेरा. बट इफ़ यूर समवन जो कि बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है चीज़ों को लेकर, यहाँ पे सक्सेस नहीं हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रही है, एंड यू वांट टू हैव लाइक अर्ली ग्रेटिफिकेशन इन सी अर्ली रिजल्ट्स, तो थोड़ा सा दूर रहो, आहिस्ता आहिस्ता हो. ये यहाँ पर आई डोंट थिंक कि अर्ली ग्रेटिफिकेशन या अर्ली सक्सेस इज़ द राइट पाथ यहाँ पर तो क्रिप्टो के अंदर. अरे भाई पता है, इट्स सो इंटरेस्टिंग, यू हैव सेड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. एक तो ये कि ये आपने बड़ी सही बात बोली कि all of our metrics of success are going to be different, and that's all right. You know what's success to you? अगर मैं final result देख रहा हूँ कि यार अमीर भाई के पास X assets हैं, X amount of assets है, या Y amount of clout है, या fame है, followers हैं, कुछ भी जो भी, मुझे भी वो चाहिए. But maybe I'm just not the person who can go through this route. Maybe I'm just not, ना? That's fair, right? देखें, जब last time हम मिले थे, हाँ, इट्स बीन 1 year, ठीक है, माशाल्लाह से. कितना चेंज हो गया चीज़ें, सब कुछ हो गया. ये सब के लिए हो सकती है. सही है. यू जस्ट हैव टू बी परसिस्टेंट. हाँ, वो चीज़ अगर आपके अंदर है, इन यू हैव टू बी समवन हु हैव लॉन्ग टर्म गोल्स. NFT स्पेस मेरे लिए इट्स स्टिल, इफ़ इट्स देयर आई विल बी डूइंग आर्ट, इफ़ इट्स नॉट देयर आई स्टिल बी डूइंग आर्ट. हम आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मैं NFT के अंदर आर्ट की वजह से आया था. नहीं अमीर भाई, the thing is I think there is this needs to be said now and always कि आप अपना काम कर रहे थे. सही है ना. आप अपना anyone who's successful in this stuff, you need to understand they're not overnight, because उनकी एक ट्रजेक्ट्री है, वो आप शायद ना देखो, या आपको सेक्सी ना लगे, या आप मद्देनज़र करो उसको, वो आपकी मर्ज़ी है. सो मद्देनज़र नहीं, सॉरी, आप उसको दरगुजर करो, आप उसको इग्नोर करो, वो
उर्दू, आप उसको इग्नोर करो, वो आपका मसला है, लेकिन देव बिन डूइंग समथिंग. अपने आप को ले लो, रामेश भाई को ले लो, आप क्या 10-10 साल का तो आपका आर्ट का करियर है ना. ऐसे ही है. और जो इवन जो 21, 22 साल के बच्चे हैं, 12, 13 साल से वो स्केचिंग तो कर रहे हैं ना. यस, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना. कुछ तो कर रहे थे ना. कुछ तो मुख्तलिफ था उनके दरमियान. सो ये आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज लोग एक लेवल पे हैं और हमें भी उस लेवल पे पहुंचना है. लोग टेस्ला चला रहे हैं, लोग पोर्श चला रहे हैं, मुझे भी पोर्श चलानी है. पोर्श बहुत अच्छी गाड़ी होती है, लेकिन हैविंग सेड दैट I cannot ignore their trajectory, you know, how they've done it. And also the other thing, ये जो आप बात बोल रहे थे ना, जो हमारे वालिदैन, जो हमारे बड़े हैं, वो फिजिकल एज में खुश हैं, and this crypto space is overwhelming. I think ये generally जो social media age है ना, our apparatuses as human beings, हमारा जो दिमाग है, it's just not built for this. क्योंकि I was recently speaking to a friend, और उनके वालिद साहब उनको डांट रहे थे कि यार तुम टाइम नहीं देते हो. और वो खुद ज़िंदगी भर बैंकर रहे थे, वालिद जो उनके वालिद साहब थे, और बैंकिंग एक बहुत मुश्किल काम है, यू नो, एवरी डे 9 to 7 PM, हाँ, मोनोटोनस और ग्राइंड है. तो उनके वालिद साहब का ये नुक्ता नज़र था कि यार मैंने किया, ठीक है, और साथ में मैंने हर ईद भी आप लोगों के साथ गुजारी, नमाजें भी पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया. तो आप क्या बात है, हाँ, है ना. तो आपके जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने फिर जो उनका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि बाबा आई एम नेवर ऑफ वर्क. वो सोशल मीडिया का काम करता है ना, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट करता है. तो उसने बोला, बाबा जब तक मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, लेट रहा हूँ, तबीयत ख़राब है, नहीं है, आई एम नेवर ऑफ द क्लॉक, राइट. सो वही आप वाली बात कि it's not for everyone. It's not. And even for the people it's for, it is extremely difficult. क्योंकि आप सो रहे होते हो, आप काम पे होते हो, आप जैसे ही जागते हो 5 घंटे नींद, अल्लाह करे आपकी 8 घंटे नींद हो, लेकिन किसकी होती है? आप नींद से उठे, आप काम पे हो, यू नो. तभी जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मैं जानता हूँ, वो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में छोड़ के सोते हैं. ऐसा ही है. You know, they do all that stuff. मुझे नहीं पता आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन नहीं, आई एम नॉट दिस मच इनटू इट. लाइक कल ही मुझे रात को ख्वाब आता है, अल्लाह खैर करे, कि जो एक एसेट है मेरा, जो एक आर्ट वर्क है, वो मेरे वॉलेट से गायब हो गया. विच इज़ लाइक यूजुअल, नॉट वेरी यूजुअल, बट इट्स पॉसिबल, इट हैपेंस. या मुझे रात को ख्वाब आता है. इट्स नॉट अ राइट थिंग टू हैव, इट्स अ नाइटमेयर बेसिकली, ठीक है. मैं उठता हूँ और मैं बोलता ओह अच्छा ख्वाब था, सो गया. But on the other side, if I was someone who have this anxiety, who have this thing कि यार मुझे चेक करना है, that's not right. That's not right. आपको you have to be disciplined. Again, आप ये नहीं कर सकते कि you are on your phone, you are on this all the time. सही है? क्यों कर रहे हो? तबीयत खराब हो जाएगी. लाइफ का क्या फ़ायदा? Why am I doing this? To have a better financial life, a sound life, ताकि मैं ट्रैवल कर सकूँ, घूम फिर सकूँ. अगर बच्चे होते हैं तो उनको बड़ा करने के लिए उनके पास सारी सहूलतें दे सकूँ. सो अगर मेरा गोल क्लियर नहीं है एंड आई एम गेटिंग मनी, ओनली मनी, एंड आई एम नॉट यूजिंग इट, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार. मतलब आप आ रहे हो, किसी भी चीज़ के अंदर आ रहे हो, यू नीड टू हैव अ गोल, यू विल हैव टू मेक योर लाइफ लिटिल डिसिप्लिन्ड, कि इस टाइम से इस टाइम तक कुछ भी हो रहा है मैंने नहीं करना है, मैंने इसको नहीं छूना है, ये चीज़ जो है वो ऑफ लिमिट है. अभी भाई हमारी जो है ना, आमिर भाई के स्टूडियो में एक बार गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ी पुरानी बात है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट कि यार व्हाट वुड you asked that question of me, and then I asked that question of you again, कि यार what would we be doing, or what would you be doing if say you had as much money as you would ever need. And ever need से मुराद luxury, not necessity. मतलब सब कुछ हो आपके पास, जो गाड़ी चाहिए वो हो. हालांकि इम्पॉसिबल है कि स्टैटिक स्टेट हो, बिकॉज फिर उससे बेहतर गाड़ी चाहिए होगी, लेकिन जो मतलब जो फक ऑफ मनी होती है ना, कि भाई इसके बाद मैं हर किसी को बोल सकता हूँ फक ऑफ, मेरे पास पैसे हैं, वट एवर दैट अमाउंट इज, से इट्स 1 अरब रुपीज, 2 अरब रुपीज, वो अगर आपके पास होते, फिर आप क्या कर रहे होते? I'll be doing art. हाँ, you'd be doing, but it's interesting, it's not just art, you'd be doing the same thing that you're doing right now. And that was such a powerful realization कि यार तो फिर
जब अल्लाह का करम है, करना यही है, तो इतना पैसा करके भी वही करना है। हाँ, अभी क्या करोगे? कम में भी कर लो। देख ना, यही तो, इफ़ यू हैव अ पर्पस इन लाइफ, ठीक है, आप सुबह उठते हो एंड यू आर लाइक ड्रिवन बाय दैट पर्पस, इट डजंट मैटर कि आप दुनिया के कौन से पार्ट में हो, you will be shipping the same thing from wherever place you are in the world. सही है। तो NFT would definitely help me. Crypto would definitely help other people as well to achieve the goals in their life. But you should have a purpose. You should have a goal. You should have discipline in life. वरना सारा बेड़ा गर्क हो जाना है, टेंशन में ही खत्म हो जाओगे। बिकॉज ऐसा हुआ है ना अमीर भाई, वेयर यू और यू नो सम अदर पीपल, रामेश भाई इंक्लूडेड, हैव हैड माशाल्लाह से immense success, अल्लाह का बहुत करम है, in NFTs and cryptocurrency. There's also been people who've had some very major losses. Absolutely. ऐसा भी है। वो जो शुरू में जब हमने स्टार्ट की बात, कि अगर आपने 1 डाला था और आपको 2 मिल रहे हैं, तो वो 1 किसी और का है जिसका लॉस हुआ है। वो दैट, एंड ऑल्सो ये जो दूसरी आपने बात की, देयर इज possibility of theft of your physical assets. There is a greater possibility, because itni mobility है इसमें, there is a greater possibility of theft of your NFTs, of your crypto. Yes. होता है ना। आप सोचो, और कुछ नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो बैन कर दिया है, ठीक है ना। वन फाइन डे आप उठते हो और आपको पता पड़ता है कि जितनी भी आपकी मिल्कियत जिस चीज़ में फंसी हुई है वो चीज़ ही इलीगल हो गई है। हाँ, इलीगल है। अब क्या करेंगे आप? तो ये सब चीज़ें भी, आई सपोज वही वाली बात है कि बट वहाँ पर ना काशी भाई यही सीन है कि मैं क्या कह रहा था उससे पहले वाले दिन, आई वॉज ड्राइंग, उसके बाद वाले दिन क्या कर रहे होगे? I'll be drawing. हाँ, 2 दिन तकलीफ ज़रूर होगी, तीसरे दिन I'll have to be on the basic. मुझे याद है मैं रिसेंटली अमिताभ बच्चन साहब का जो है वो देख रहा था, उनकी ज़िंदगी का सिलसिला। तो उनके जो बेटा अभिषेक, वो बता रहा था कि एक वक्त था जिस वक्त अमिताभ बच्चन के पास काम नहीं था। अल्लाह रहम करे। जी, उनके पास काम नहीं था और उन्होंने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था जो कि लॉस में चला गया था। तो उन्होंने अभिषेक को बुला लिया बाहर से, वो पढ़ रहे थे, ठीक है, लंदन में पढ़ रहा था वो, तो उसको बुला लिया वापस से और उसको बिठाया, बोला भाई ये सीन है भाई, अब्बा हो गए बेरोज़गार, अल्लाह रहम करे, ठीक है। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कि अब्बा हो गए बेरोज़गार, अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, हमने मिल के करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि हमारे दरमियान ना बड़ी चलेंगे, हम लोग टेबल पे बैठते हैं बड़ी वो ये रात को आए 2-3 बजे के करीब और मुझे पूछा तुम जाग रहे हो? मैंने कहा अब तो मैं जाग ही रहा हूँ। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि यार हमारे बड़े कहते थे कि जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, सो you'll have to be on your basics, ठीक है। और मेरा बेसिक क्या है? एक्टिंग। तो मैं सुबह जाता हूँ और यशराज से मिलता हूँ, और सुबह को 5 बजे वॉक पे चले गए जिम विम करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने कॉल की यशराज चोपड़ा को कि आप मुझसे मुलाकात करें, मुझे जो है वो काम चाहिए। एंड देन ही गॉट मोहब्बतें, ये शाहरुख खान वाली that was a big break for the great अमिताभ बच्चन। तो हमारे लिए ना एक बेसिक सेट ज़रूर होना चाहिए। लाइक व्हाट हैव आई एवर अचीव्ड, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, सबके साथ साथ आपकी मेहनत, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह के बाद मैं कहता हूँ चलो लास्ट चीज़, बट दैट शुड बी योर स्किल ऑफ एनीथिंग। आप ड्रॉ करते हो, आप सिंग करते हो, आप जो है वो लोगों से बातें करते हो, आप जो है वो वीडियोस बनाते हो, एक बेसिक अगर आपका है जो जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान जाते हो, तो यू टॉक अबाउट दैट स्टफ, वो चीज़ नहीं छोड़नी है, वो चीज़ नहीं छोड़नी है। क्योंकि अगर हुकूमतें बैन कर देती है, वॉर हो जाती है और आप कहीं जगह पे फंसे में हैं, एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, सो वो चीज़ आपको फिर से एलिवेट करेगी। वो चीज़ आपको देयर इज समथिंग विच would bring you again like a phoenix from the ashes. I mean, भाई पता है, it's very interesting. मैं recently देख रहा था एक documentary देख रहा था about Dr. Dre. Dr. Dre is arguably the most successful hip hop artist in the world. Arguably क्योंकि वो बिलियनर हो गया है। So उसने जो अपना I think बिलियनर हो गया, उसने ये Dre Beats जब बेचा ना,
अब ड्रे बीट्स इज नॉट टेक्निकली हिप हॉप बट इट इज हिप हॉप, जो भी है, बट बहरहाल बीट्स बाय ड्रे जो था उन्होंने जो बेचा, तो that's how he's arguably the financially most successful hip hop artist or hip hop personality in the world. मैं ये सोच रहा था कि उनका जो आगाज था, where he started from the streets. He started, he had no money. He was living in his mom's house, and वो भी कोई इतना अच्छा घर नहीं था, उनकी वालदा के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे. When he started, soon after he lost his brother to a shootout or something. मतलब बहुत crime था, बहुत खतरनाक था. That's just how he started. तो मैं सोचता हूँ कि that if you were to understand, if you were to not agree with you what you're saying, where you have to stick to your basics, you would think कि उनकी music उन तकलीफ़ों में से आई थी, right? तो जब वो तकलीफ़ें चली गई, but technically he should not be able to make that music ना. अब जब वो Porsches चला रहे हैं और जब इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, तो अब तो he should not be, but he's still making music and he's making some of the best music. वो खुद ना बना रहे हो, खुद रैप ना कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हैं. प्रोड्यूसिंग भी वही है ना, प्रोड्यूसिंग उनका काम है ना. That's your story. हाँ, यही तो यूनिकनेस है कि अगर मैं जाना चाहूँ, सो दैट इज़ माई गोल, ठीक है. अगर मैं जाना चाहूँ तो वो मैं अपने आर्ट से जाना चाहूँ. इट्स नॉट कितना पैसे कमा लिए या कितने जो है वो चीज़ें अचीव कर ली. इट शुड बी आर्ट, ठीक है. इट शुड बी समथिंग जो कि बड़ी बेसिक है. इट शुड बी समथिंग जो कि बहुत सिंपल है. बट आई वुड लाइक टू रिलेट माई सेल्फ टू आर्ट, टू इलस्ट्रेशंस, टू समथिंग. वो वेडिंग नहीं थी 3 साल जब लास्ट टाइम हम मिले थे, वी वर टॉकिंग अबाउट वेडिंग इलस्ट्रेशन. This time we met, we talking about NFT. What is the thing which is similar in that? It's art. You'll meet me after 5 years. कुछ और होगा, बिल्कुल होगा. कामयाब करे आपको. हाँ, इंशाल्लाह. लेकिन उसमें जो सिमिलर चीज़ होगी ना, वो आर्ट होगी. अगर आप मुझसे आज से 10 साल पहले भी मिलते तो भी यू वुड हैव फाइंड आर्ट कि यार ये क्या करते हो फ्री टाइम के अंदर. सो आई यूज़ टू सिट एट रेस्टोरेंट. चाहिए मैंने मेरे फैमिली के अंदर ही रेस्टोरेंट्स वगैरह का बिजनेस है, तो मैं वहाँ पर बैठा करता था. वहाँ पर मैं क्या करता था, वहाँ पर मैं अपने वेटर्स को ड्रॉ कर रहा होता था. वहाँ पर जो है वो जो फ्री टाइम होता था तो वो कस्टमर्स बैठे हुए होते थे, मैं उनको ड्रॉ कर रहा होता था. आई यूज़ टू सिट एट काउंटर, ठीक है. तो वो इट वाज अ बोरिंग थिंग, बट वहाँ पर भी मेरे लिए जो चीज़ मेरा टाइम पास था, या वो जो चीज़ जिसकी वजह से मैं सोचता था कि चलो ठीक है यार अगले दिन जाकर कुछ तो कर ही लेंगे. सो दैट वाज ड्राइंग. सो आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट जिसके अंदर वो जो एक आर्टिस्ट था वो बता रहा है कि मैं जो है ना वो सफ़र किया करता था, तो वहाँ पर एक टोल प्लाज़ा आता था. वहाँ उस टोल के ऊपर एक बंदा बैठा होता था सुबह को 5 बजे, हैप्पी एज हेल. मतलब आप सोच ही नहीं सकते सुबह को 5 बजे इतना खुश कैसे हो सकता है ये. और बोल रहा है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक दिन गाड़ी थोड़ा सा पहले रोक के मैंने बोला मैं इससे पूछूंगा भाई क्या सीन है, खुश क्यों, कितने खुश इस बोरिंग जॉब पे कैसे रह सकते हो. तो उसने कहा कि यार मैं जो ना वो एक म्यूज़िशियन हूँ, ठीक है. मतलब मुझे म्यूज़िक वगैरह बजाना पसंद है और सुनना भी पसंद है. सो थ्रू आउट माई डे मुझे ये टाइम मिलता है जो ये टोल पे जब मैं बैठा होता हूँ, जिसमें रात में ट्रैफिक बहुत कम होता है. सो आई गेट टाइम टू प्रैक्टिस माई म्यूज़िक. इस वजह से मुझे बहुत खुशी होती है इस काम के अंदर जब आप लोग आ रहे होते हो जा रहे होते हो. सो आई एम प्रैक्टिसिंग माई म्यूज़िक. सो आप सोचो हाउ पावरफुल दैट इज़ कि एक बंदा जिसको अपना पर्पस पता है, जिसको अपना बेसिक पता है, वो कहीं पर भी जाएगा वो उसको एंजॉय ही करेगा भाई. आई थिंक जो आपने ये बात बोली ना, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं होती है कि एक ऐसा इंसान हो जिसको ये समझ आ जाए कि यार मेरा पर्पस क्या है. क्योंकि देयर इज़ पीपल, ये गुफ्तगू भी हमने की होगी मेरे ख्याल में पहले, लेकिन देयर इज़ साइकोथेरेपिस्ट्स, देयर इज़ फिलोसोफर्स जो आपको बाकायदा बोलेंगे कि यार आप मतलब जो फिजिकल इलनेसेस होती है ना, डिप्रेशन हो गया, कुछ लोग तो बहुत ही एक्सट्रीम चले जाते हैं. वो बोलते हैं इवन कैंसर इज़ कॉज्ड बाय बिटरनेस. लाइक मतलब ये ऑब्वियसली जो साइंसदान बैठे हैं या जो डॉक्टर्स बैठे हैं बोले क्या पागल बात कर रहे हो तुम यार. लेकिन बिकॉज देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन. देयर इज अ हाउ इट हैपेंस. इट इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स जो आपके बॉडी में होते हैं, और दैट्स हाउ कैंसर हैपेंस, राइट. अल्लाह रहम करे. बट जो वाई है ना, पीपल हैव ऑफन सेड कि definitely for depression and anxiety and all those things, but even for things as
physical, as visceral, as apparent as cancer, it comes from bitterness. It comes from a poisoning of your soul, and all of that stuff can be avoided if you have meaning. उसके बाद भी आपको क्या कैंसर हो जाएगा, हाँ यार हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह रहम करेगा, लेकिन जो है वो लॉट्स ऑफ देम विल आर्ग्यू कि ये जो बिटरनेस होती है ना, या ये जो डिप्रेशन, ऑल दोज थिंग्स दे कैन बी अवॉइडेड इफ यू जस्ट हैव योर पर्पस. बिल्कुल ऐसा है. और पता है क्या काजी भाई, सीन ये है कि ये जो है ना, एक चीज़ होती है ना, यू गेट इट नेचुरली बचपन से. आप यू पॉजिटिव, यू समवन हुज ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम. लोगों को गुस्सा आ जाता है, भाई यार क्या यार इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, आमिर की तरह, आमिर भाई की तरह, नहीं ये अच्छा है, मतलब कुछ भी हो जाए सब अच्छा है. देन देयर इज समवन हुज पेसिमिस्ट. ठीक है, वो हर जगह पर कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढ लेता है. ठीक है, एक चीज़ होती है जो आप नेचुरली करते हो, एंड देन देयर इज विच यू नर्चर. सही है. सो इफ़ यूर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, या आप पॉजिटिव रहते हो और आप नेचुरली ऐसे हो, सो आप उसको जब नर्चर करते हो तो यू बिकम मोर पॉजिटिव, यू बिकम मोर स्वीट, आप कह सकते हो, जब बिटर के खिलाफ. तो आप इस चीज़ को जो है ना वो फैला भी सकते हो. लाइक एब्सोल्युटली, कि अगर आपके दरमियान 10 लोगों के दरमियान एक ऐसा शख्स आ जाए who's optimistic, who's positive, so जो उसकी vibes होती है ना, that can change the environment, that can change everything in the room. और वो चीज़ अगर आप नहीं हो, if you're like someone who's not very optimistic, उस चीज़ को नर्चर करके बेहतर किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है. और लाजमी है अमीर भाई मेरे ख्याल में. I mean to being in कराची तो ख़ास तौर पे, but I mean even if you're not going to be an optimist, I think hope is essential for living, na? And I think if you do not at least look for your purpose, na, if you decide क्या मेरा कोई purpose ही नहीं है, तो वो hope चला जाता है. ऐसा ही है. और उस hope के उसके अलावा तो फिर बहुत मुश्किल काम है. Hope is very important. मतलब अगर आप देखो ना, जो एक कराची वाला है वो किस पर जिंदा है? उम्मीद पर. अल्लाह रहम करे. वो अगर मतलब वो निकाल दो ना, तो हमारी ग्रोथ ख़त्म. मतलब वो होप ही तो है कि ये बेटर हो जाएगा. सही है, इसको वोट दे दो तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, ये रोड बन जाएगा तो शायद मैं जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा, या नहीं यार डकैती हो गई, कोई नहीं, बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अल्लाह रहम करेगा. सो वो चीज़ हम लोगों को बड़ा ड्राइव कर रही होती, ख़ास तौर पर कराची आइट. और वही ड्राइव कर रहा होता है ना, वही है वैसे. अब तो खैर वही है जो कि हमें ड्राइव कर रहा है. मतलब आप क्या, वो वाली बात है ना कि आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे लाइक यू नो, ये हमने अपना तकिया कलाम बना लिया है कि यार कराची वाले जो होते हैं ना टफ होते हैं. ब्रो उन्होंने चूज थोड़ी किया है टफ होना. नहीं, और ये कोई टफ नहीं है. देखो अगर आप सारी चीज़ें जो है ना वो आखिरत पर डाल देते हो, या आप सारी चीज़ें जो है वो ऐसे करते हो कि यार इसको तो क़यामत का दिन पता चलेगा, दैट्स नॉट बीइंग टफ, दैट्स बीइंग क्या आप अवॉइड कर रहे हो. ब्रो पता है क्या, एंड यू नॉट एज ये, अब आई होप वी डोंट गेट इनटू ट्रबल फॉर सेइंग दिस, दैट्स नॉट योर रिलीजियस इम्पेरेटिव. आपके रिलीजन में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि आप जो पैसिव हो जाओ. इस्लाम इज नॉट अ पैसिव रिलीजन, इट्स अ पीसफुल रिलीजन. पता कि ये चीज़ जो उसने गलत की है, आपके साथ गलत, आपको लग रहा है गलत, ठीक है, वो नहीं हो अल्लाह के नज़दीक गलत, या वो जो है वो ऊपर वाले के नज़दीक वो गलत चीज़ नहीं हो. बट आप उसके खिलाफ लड़ने या आवाज़ उठाने की जगह आपने सब कुछ छोड़ दिया कि बस ये तो हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. You're not supposed to do that, ना, वही तो. मतलब ऐसा है कि जैसे अल्लाह ना करे किसी की डकैती हो जाती है, या किसी के फैमिली के अंदर डेथ हो जाती है, और वो उसका रीज़न है कोई एक नॉर्मल क्राइम. सही है, और आप बोलते हो भाई बाजी कोई नहीं, टेंशन नहीं लो, अल्लाह सब ठीक कर देगा, विच इज़ गुड. लेकिन आप उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की जगह पर जब आप सामने वाले को बोलते हो मत करो इसको, हाँ इसको क़यामत के दिन पता चल जाएगा, या इसको आखिरत के दिन पता चल जाएगा. सो आप क्या कर रहे हो कि आप लाइफ को मिला रहे हो उस चीज़ से. आपको सिखाया गया है कि यार अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है. आप आवाज़ उठाने की जगह पर अगर आप यही बोल दो कि यार ये तो गलत बोल रहा है ना, इसको तो देख लेगा. आप ऐसे सोचो ना अमीर भाई, आप मुझे कितने माशाल्लाह हमारे पैगंबर हैं, कितने हमारे रसूल हैं, अल्लाह ताला उन सब के ऊपर सलाम हो.
राइट अप अंटिल द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एवरीवन, किसने मुश्किल नहीं उठाई? किसने जो है बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? किसने तकलीफ़ें नहीं देखी इस चीज़ की, इस ख़ास इस बुनियाद के ऊपर कि यार अगर कुछ गलत हो रहा है तो इट इज़ देयर ड्यूटी। और चलो ठीक है, वो अल्लाह ताला के नबी थे और वो पैगंबर थे, तो उनके ऊपर ज़्यादा मुश्किल थी, तो आप थोड़ी कम मुश्किल ही कर लो, एटलीस्ट ये देख लो। ऐसे लोग नहीं हैं क्या? मतलब अब जिब्रान नासिर, ठीक है, वो जिस तरह के रिस्क ले रहा होता है, अल्लाह रहम का, या वो दूसरा वो रिपोर्टर जो इकरार उल हसन, उसके साथ क्या हुआ है अमीर भाई? मतलब आप सोचें अल्लाह खैर करे। अच्छा, उसके बाद भी बिकॉज वही वाली चीज़, बिकॉज दे हैड पर्पस कि भाई ये चीज़ ठीक करनी है, मैं तो चला जाऊँगा सबकी तरह, हाँ, जब तक हूँ तब तक तो ठीक करना है, हाँ, सही है। सो वो वापस से आ जाते हैं, हाँ, वो पिटते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। आई थिंक जिब्रान नासिर, वो अली अब्बासी है ना, अली भाई, TPR पॉड वाले, उन्होंने एक इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की मेरे से जो मैं कभी खुद नहीं सोचा था। बिकॉज व्हेन आई मेट जिब्रान, द फर्स्ट टाइम आई सॉ जिब्रान नासिर, आई मस्ट हैव बीन 18-19, निक्सर में था मैं। ओके। एंड देन द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम फॉर अ पॉडकास्ट वाज आई थिंक 8 या 9 years later. मैं जब मिला, बिकॉज आई मेट हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैड सीन हिम ऑन TV and then I met him for the first time in person. You know, he's a good looking guy, normal शलवार कमीज में अपने। मैंने बोला यार अच्छा, बातें उनकी शानदार माशाल्लाह से, and I was only having a conversation with him, so I was like cool, गुफ्तगू हुई, जिब्रान भाई अपने घर चले गए, and I thought nothing of it, I was like good podcast. फिर जब अली भाई ने and then अली भाई 2 years later remarked on that, he's like कि जो तुम्हारे पॉडकास्ट पे पहली बार जिब्रान नासिर आया था ना, सिर्फ अगर उनकी आप जर्नी देखो, from when he first came onto the scene as a young, vibrant, well-spoken, well-dressed, good-looking, average Pakistani. Okay. हाँ, average Karachiite. ऐसे लगते हैं हम। अगर हम if you pick out one of the best of us, Jibran Nasir in the 2011 या 2012 politics era, that's how we look. Yes. You know? Yes. मतलब दाढ़ी साफ सुथरी, everything, clean, right? हाँ, मतलब एक बंदा बोले कि हाँ यार ऐसा होते हैं पाकिस्तानी, ऐसे होते हैं, ये देखो माशाल्लाह से, राइट? एंड देन व्हेन यू सी हिम ऑन द पॉडकास्ट, यू नो, उनकी इट्स नॉट लाइक एनी वन, यू कैन पॉइंट एट एनी वन थिंग, इट्स नॉट हिज वेट, इट्स नॉट हिज ड्रेसिंग, इट्स नॉट द वे ही टॉक्स, ऑल ऑफ इट इज़ द सेम, लेकिन उनकी आवाज़ भारी हो गई है, उनकी शक्ल पे ना एक जो how much of a toll politics or crime or just that life takes on you in this country, in this city, that's an excellent example. और मैंने ये पूछा उनसे, I wasn't thinking of it consciously, but I suppose ये दिमाग में आया होगा कि यार आपने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, ये वो। उनका जवाब फिर भी वही था जो आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, which is so powerful माशाल्लाह से. I don't have to agree with his politics. I can still be impressed by, you know, just him as a person. ये एक और चीज़ है जो हम जो है ना नहीं समझ आती हमें। नहीं, सही बात है। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जिब्रान भाई तो क्या सीन है? ही इज़ लाइक यार आई डिडंट गेट इनटू दिस फॉर प्रेज, एंड आई वाजंट, मतलब मेरा कोई ये एंड गोल नहीं था कि मैं बेस्ट होना चाहिए हूँ, मेरी तबीयत को कोई, मेरी सेहत को कोई मतलब जवाल ना हो, या मेरे मुझे तकलीफ़ें ना, आई न्यू कि ये सब चीज़ें होंगी, यू नो, एंड आई डिडंट नो कि ये इस पर्टिकुलर तरीके से होंगी, लेकिन आई न्यू कि कुछ ना कुछ होगा। एंड बिकॉज आई हैड माई वाई, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैंने ये काम करना है, आई वॉज ओके विद इट, यू नो। आप काफ़ी टफ हो जाते हो इफ़ यू हैव योर वाई। यस, और वो ही मेरे ख्याल से जो ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। सो इफ़ योर वाई इज़ क्लियर कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाँ, आप देखोगे कि हर चीज़ ना थोड़ा सा इधर से उधर से अलाइन होकर एक ही जगह पे पहुंचती है। सो स्टार्ट विद वाई. Start with the why. Start with the why. Before we get into your teaching, I did also want to talk about this for a minute. So we've been talking at length about your why and your passions and all those things, right? मसला ये होता है, obviously that's very difficult for people to find out कि क्या है। ज़ाहिर है अल्लाह का बहुत हमारे पास ख़ास करम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी किसी हद तक समझ आता है, सही ना? ये आपको भी एब्स्ट्रैक्ट पता है कि आर्ट अच्छा लगता है, राइट? अगेन जो दूसरी बात है ना, यू कैंट, अभी वही वाली बात है, हम सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं तो हम ये बात कर सकते हैं। यू कैन नॉट फॉल्ट पीपल फॉर दिस, लेकिन लोग आपके आर्ट को देखेंगे, लोग बोलेंगे ये मेरा पैशन है,
right? But the thing is, that's also them looking for a shortcut. So मुझे भी wedding illustrations करनी है. Set है. Wedding illustrations is not your passion. Yes. That's not your why. Yes. Abstract art, designing a certain way is your why. Yes. Right? And the feeling you get from it. मुझे ये इसलिए अब ज़्यादा फील होता है. आप लोग पहले भी बोलते थे because you people माशाल्लाह से been doing it for longer than I have. But मुझे उस हद तक शायद नहीं समझ आता था. People go, lots of people will talk to me and they'll be like, we want to start a podcast. I don't think you do. Because again, वही वाली बात है ना, the podcast wasn't my why. It wasn't my passion. That's just a manifestation of it. क्या इस वक्त ये काजी बैठा हुआ at 29 years old doing this stuff, having this conversation, alhamdulillah with you. Obviously, I pray कि ये चलता रहे, आगे चलता रहे और बढ़ाओ और you know financial feasibility, all those things, yes, right? But ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो, you know? तो दुआ तो हमेशा ये होती है कि I hope I keep pursuing my why and I am able to. ये भी एक बहुत बड़ा privilege है, right? बहुत बड़ा. But the thing is, people need to understand that it's not the same thing. People like, we saw you, this is a manifestation of my why. You can't make that your why. You can't be like, यार हाँ मुझे podcast शुरू करनी है. नहीं, क्यों शुरू करनी है आपको podcast? You know, just go back. Is it because this seems cool to you on camera? दो लोग बात कर रहे हैं. Maybe या अमीर भाई ने कोई अच्छी बात कर दी तभी आप बोल रहे हो पॉडकास्ट शुरू करनी है. That's not a good reason. You know, that can be the start of your journey. पर अगर आप इरफान भाई के साथ ऑफन होता है, आपके साथ ऑफन होता है, रामेश भाई के साथ ऑफन होता है. रामेश भाई को किसी ने देख लिया जूते पहने हुए, मुझे भी यूट्यूबर बनना है. ऐसा ही है. Bro, नहीं, but you know, those shoes are a manifestation of something that he is. It's not the same thing. You know, वो चीज़ है जो कि उनकी लाइफ इज लाइक शाउटिंग हिज पर्सनैलिटी. सही है. बहुत अच्छी लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अपील करती है. यार मैं भी ऐसे करूँगा. जब आप उसमें जाते हो तो आपका ऐसा लगता है यार ये भी तो है, वो भी तो है. सो इट्स लाइक मैं जब कोई क्लास पढ़ाता हूँ ना, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है, नया बैच आता है, सो देयर आर 15 स्टूडेंट्स न्यू. everyone is super excited, like they've been messaging me for a couple of weeks now कि अब class start होने वाली, and they're very excited seeing my journey and everything, or following me for years. So जब पहली क्लास होती है ना तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ओह ये सब भी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. ओह नो, ये तो मतलब I have been doing this for like 10 year professionally. पढ़ाई या आर्ट प्रोफेशनली 10 year. उससे पहले जब आप प्रोफेशन में आते हो तो उससे पहले कोई स्किल होती है ना, तो वो तो छोड़ ही दें. आई हैव बीन डूइंग स्केचिंग एंड ड्राइंग सिंस आई वाज इन स्कूल, और वहाँ के ग्रेड्स भी बताते हैं कि मुझे अच्छा लगता था, मैं अच्छी बनाता था, अल्हम्दुलिल्लाह. तो वही वाली जो आपने बात की ना कि आप जो कर रहे होते हो, अगर आप कोई चीज़ बहुत अच्छे करते हो ना, एंड यू सी गुड इन डूइंग दैट, सो वो चीज़ लोगों को इंस्पायर करती है. ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे ट्राई टू इमिटेट यू, बट ओनली दोज हु परसिस्टेंट एंड हैव अ सेम गोल, ये सेम वाई विल रेजोनेट विद इट, और वो आगे इसमें सक्सेसफुल होते हैं. एग्जैक्टली वो सक्सेसफुल होंगे. बिकॉज वही वाली बात है ना, इतने सारे लोगों ने इरफान भाई, मूरू भाई को देख के व्लॉगिंग शुरू की. यस, व्लॉग. अल्लाह ना करे कि वो पॉडकास्ट शुरू कर दे, मैं फिर क्या करूँगा, अल्लाह माफ़ करे. लेकिन वो अब आपको देख के कर सकते हैं. देखो भाई, अल्लाह माफ़ करे. तो जो है व्लॉगिंग शुरू की. बट वही वाली बात है, दे वर इन्फैचुएटेड विद द एंड रिजल्ट कि यार मूरू भाई अपने गाने बना देते हैं और वो यूट्यूब पे डाल देते हैं, और मतलब अपने व्लॉग में. बट डूड, that's not his why. That's a manifestation, right? आप उस मैनिफेस्टेशन के साथ इतना अगर अटैच हो जाओगे, कल को वो छोड़ दे सारी चीज़. ये जो इन दोनों लोगों ने तो किया है मल्टीपल टाइम्स, they've evolved in their career, right? And people are like, why do you keep talking about them? Because they are very interesting case studies. You know, you should learn from them. Multiple times, both of them individually in their own careers have evolved, right? भाई you were like, what the fuck are you doing? You know, आप मूरू भाई को बोलते थे, आप इरफान, मूरू भाई अचानक से 30 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? भाई he is evolving ना. It's a different iteration. He's not ready to take dictation. हाँ, and it's a different iteration of his why. वो इस तरीके से, for instance, आप जो हो
अभी तक माशाल्लाह से आप ये इलिस्ट्रेशंस करते हो एक किस्म की, अचानक से आप कॉमिक बुक्स में आ गए, तो ये सब जो लोग हैं जो बोल रहे हैं यार अमीर भाई वी वांट टू बी जस्ट लाइक यू, यही आपको गाली देंगे, बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है. सेम इट्स हैपनिंग, इट्स एक्चुअली हैपनिंग सिंस लाइक अगर आप देखोगे, सो आई हैवंट पोस्टेड एनी वेडिंग इलिस्ट्रेशन सिंस लाइक 3-4 months. सही है, नहीं कर रहे हो, कर नहीं रहा हूँ, कर भी रहा हूँ तो मतलब आई एम नॉट पोस्टिंग दोस बिकॉज आई एम पोस्टिंग NFTs. ठीक है, यू फोकसिंग ऑन दिस, फैन आर्ट्स. अगर आप मुझे आकर ये बोलते हो कि यार ये तो बच्चे करते हैं फैन आर्ट्स, किसी और के लिए बनाना, अपने दिल से खुशी से बनाना, यू सक्सेसफुल, यू आप जो है वो चीज़ स्किल्ड हो, इतना टाइम हो गया है, यू शुडंट बी मेकिंग फैन आर्ट्स. व्हाई? आई लाइक ड्राइंग. अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है एंड और मुझे पसंद है तो मैं क्यों ना बनाऊँ. ठीक है, और वो ही जो एवोल्यूशन की बात है ना, so that I literally explored a lot of different style in couple of months, जो कि मैंने पिछले 3-4 सालों में नहीं किया था. wow, okay. क्योंकि I take a break और जो है वो चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया, जिस चीज़ों की डिक्टेशन मैं ले रहा था कि नहीं यार मैं अगर कोई और चीज़ डालता हूँ ना तो उसके ऊपर ज़्यादा लाइक्स नहीं आते हैं या ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं, ज़्यादा शेयर्स नहीं आते हैं. आई डोंट नीड टू डू दैट नाउ. अगर जिनको अच्छा लगता है, जो मुझसे रेजोनेट करते हैं, जो मेरे काम को पसंद करते हैं, तो वो कोई भी काम पसंद करेंगे जो मैं बनाता हूँ. आई एम ड्राइंग ना, आपको आर्ट अच्छी लगती है तो आप आर्ट देखो, चाहे मूरो भाई 30 मिनट की वीडियो बनाए या 3 मिनट की वीडियो बनाए, अगर आपको मूरो भाई का काम अच्छा लगता है तो आप उनका काम देखोगे. चाहे इरफान जो है वो व्लॉग बनाए, इरफान भाई जो है वो रोल के ऊपर या बर्गर के ऊपर वीडियो बनाए, आपको अच्छा लगता है इरफान भाई का काम, आप देखोगे. आपको अगर तो वो उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है या आपको जो है वो उनका वो पर्टिकुलर जो एक स्टाइल है वो अच्छा लगता है और आप वो इमिटेट करना चाहते हो, और फिर आप फेल हो जाओगे. क्योंकि वो चीज़ एक छोटा सा उनकी अक्कासी करता है, एक छोटे से पार्ट की अक्कासी करता है. इट्स नॉट लाइक whole. It can't whole be Irfan bhai, it whole can't be, Moro bhai. Yeah, because here's the thing, right? Especially with you, this applies very readily. But even with them, because technically each video, जैसे आपका each illustration is a self-contained. अगर मैं सिर्फ वो illustration देखूँ, I could just like the illustration and not know you at all. Same thing with their videos. लेकिन उनकी videos में उनकी वो खुद मौजूद होते हैं तो एक थोड़ा सा difference है. But just because that one illustration garners more interest than say another illustration does not mean कि आपके लिए वो ज़्यादा अहमियत रखती है. बिल्कुल सही बात की. In that snapshot. बहुत अच्छी बात की आपने. बस यार अमीर भाई, क्योंकि काजी भाई सीन क्या है, देखें एक चीज़ है जो आपने बनाई है, इट्स ऑल ऑफ देम आर योर डार्लिंग्स. ठीक है, आपको नहीं अच्छी लग रही है वो, बट किसी को वो बहुत अच्छी लग रही है. सही है, और एक है जो कि लोगों को नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन आप यू लाइक इट. सही है, तो वो तो चलता रहेगा. नहीं, पर वही वाली बात है ना भाई, इट ऑल्सो इज अ स्नैपशॉट ऑफ यू इन टाइम. हम पहले ये भी बात कर रहे थे कि समटाइम्स जो आपको यादें होती है ना आपकी, वो किसी स्पेस से लिंक नहीं होती, वो टाइम से लिंक्ड होती है. ठीक है ना. अब जैसे ये रोल वाली वीडियो से मुझे एक बात याद आई कि मैं जो है एक ज़माने में, आई मस्ट हैव बीन 15 या 16, तो मैं जो है रेड एप्पल का वो 6 रोल वाला डब्बा लेता था और पूरा खुद खा जाता था. ना वो काजी रहा, ना वो कराची रहा, शायद रोल वैसे यादें रह गई. यादें. लेकिन वही वाली बात है ना, अब मैं जाऊँ और मैं जाके वो 6 रोल का डब्बा लूँ और खाने की कोशिश करूँ, आई कैंट गो बैक देयर because it's not a physical place that I want to go back to, it's a time. Right? Similarly, आपका जो ये illustration होती है, 2 साल पहले की illustration आप उठाओगे, मैं बोलूँगा यार अच्छी है, बुरी है, आपका स्किल बेहतर हुआ है, कुछ हुआ है, आप उठाओगे, आपको एक 2 साल पुराना बंदा याद आता है. ये 4 साल, सॉरी 2018, 4 साल अल्लाह रैप करे, 4 साल पुराना बंदा याद आता है कि यार मेरी जहनियत क्या थी उस वक्त. Even from a year ago, डीप हो गया ये. बस देखें आप, even from a year ago when you pick up our podcast, you know, you look at yourself, you're like यार हाँ ठीक है, बातें मैं उस वक्त टीचिंग की कर रहा हूँ, वेडिंग इलस्ट्रेशन की कर रहा हूँ, अब मैं NFT की कर रहा हूँ, बट वो बंदा क्या है? It's a different person, almost, you know, almost entirely. मुझे देखोगे, अपने आप को देखोगे, आप बोलोगे यार ये कोई और लोग बैठे हुए हैं. और ऐसा होना भी चाहिए ना. लाइक अगर आप 1 साल के बाद सेम है, that's dangerous. उस साथ कोई मसला हो गया. That's dangerous, man. मतलब अगर मशीन कपड़ा खा रही है. तो I've seen a lot of people जो अपनी पुरानी वीडियोस, पिक्चर्स, उन चीज़ों को देखकर बोलते हैं, oh shit man, यार ये क्या आदमी है.
अच्छी बात है भाई, आप इवॉल्व हुए तभी तो आप बोल सकते हो कि यार दैट गाय इज शिट। आप इवॉल्व हुए हो और इट शुड बी लाइक दैट। यप, 100%। स्पीकिंग ऑफ एवोल्यूशंस नाउ, और आपने थोड़ा सा ये अपने टीचिंग की तरफ वो हिंट किया भी। आई आस्क्ड यू बिफोर एज वेल, जो इंडस वैली, विच इज़ वेयर यू टीच, इंडस वैली स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ग्यूबली कराची में या पाकिस्तान में इवन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, पीपल से, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों से इंटरेक्शन किया है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बैचलर्स और अंडरग्रेड्स इन पाकिस्तान है ऐसा? अगर हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो शायद होगा, अगर हम ग्लोबली बात करेंगे तो नहीं होगा। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, लाइक आर्ट के लिए कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई टीच एट कराची यूनिवर्सिटी एज वेल। अब दिस इज़ द फर्स्ट सेमेस्टर आई एम नॉट टीचिंग देयर सिंस लाइक क्लास 7 years। वाओ, ठीक है। आप कब से पढ़ा रहे हो? आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2013, so it's been 9 years. Yeah, mashallah se. I started teaching as an assistant teacher at IVS, और फिर 2 साल के बाद 3rd year में जाकर जो है वो I became a full time teacher, like not a faculty member, proper faculty member, adjunct faculty था। हफ्ते में 2 दिन जाता था और मैं जाके पढ़ाता था। इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ why was I never became a permanent faculty। तो मैंने देखा कि कराची स्कूल ऑफ आर्ट 3rd, वहाँ पे मैं एक सेमेस्टर गया था, एंड देन वी डोंट हैव एनी अदर यूनिवर्सिटी, लाइक वी हैव कराची यूनिवर्सिटी, वी हैव इंडस वैली स्कूल्स ऑफ आर्ट्स, वी हैव कराची स्कूल ऑफ आर्ट, और उसके बाद फिर इकरा, ग्रेनेड, जेबिस, हबीब, ये छोटे छोटे से यूनिवर्सिटीज़। हबीब भी बहुत बाद में आया, ठीक है। हबीब का भी शायद 1 या 2 बैच हुआ है जो कंप्लीट हुआ है, यानी 4 साल हुए जिनको। तो यू डोंट हैव इनफ मटीरियल टू एवेल्यूएट कि यार ये बहुत मुश्किल है, सही है। हाँ, आपने जिन स्कूल से पढ़े हो, जिन कॉलेजेस से पढ़े हो, और वहाँ के बाद आप IVS में आते हो, तो फिर डेफिनेटली you'll फील इट लिटिल डिफ़िकल्ट। और वो कौन से इदारे में नहीं होता, लाइक इफ़ यू डूइंग बिजनेस IB से, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट दैन दैट। अगर आप मेडिकल कर रहे हो EKU से या जिन्ना से या डव से, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट दैन दैट। आप आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आकर टाइम नहीं देना चाहते हो, आप आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आकर जो है यू वांट टू डू पार्टी, यू वांट टू गिव टाइम टू अदर स्टफ एज वेल, हैव अ लाइफ, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट होगा ना भाई। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट माई एडमिशन इन इंडस वैली, तो जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैं टीचर गया, सही है, क्या मतलब स्टूडेंट भी नहीं था और वहाँ पर टीचर बन गया, तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो देखो क्या गेम हुआ है। थैंक यू अल्लाह मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो I used to see people complaining about IVS. I used to see कि यार ये इतना काम होता है, ये सारी चीज़ें होती है, and I was like सेमी प्रोफेशनल एट दैट टाइम। थोड़ा बहुत काम कर रहा होता था, स्टोरी बोर्ड्स और इलस्ट्रेशंस कर रहा होता था। तो मैं जब बच्चों को देखता था तो वो शिकायतें कर रहे होते थे कि यार ये क्या सिलसिला है, ये क्या सीन है। तो वो चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी ऑफ लगती थी। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें IVS एज अ डिफ़िकल्ट यूनिवर्सिटी तो हाँ, लेकिन अगर हम ओवरऑल में बात करेंगे तो आई डोंट थिंक सो। हर जगह ही मुश्किल है, अच्छे बच्चों के लिए नहीं, बुरे बच्चों के लिए मुश्किल है। नहीं तो सो इफ़ आई वर टू कंपेयर इट टू, फॉर इंस्टेंस, मैं ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर आप AKU जाके मेडिकल कर रहे हो उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज दैट्स अ स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट स्कूल, राइट। और बिजनेस इन IBA सिमिलरली। बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, और बाहर से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ गुड GPA एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मे बी इफ आई वर टू लुक एट दैट कोर्स लोड, मैं शायद बोलूँ कि नहीं ठीक है, मुनासिब तो सीन है, ईजी सीन है, मतलब इतना तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जब लोग बताते हैं कि हम पूरी रात जागते हैं, हाँ ब्रो, हाँ तो जागना पड़ता है, हाँ पोर्टफोलियो बनाने के लिए जॉब में भी करना पड़ेगा, हाँ पूरी रात जागना, बच्चे होते तो भी करना पड़ेगा, जागना तो पड़ेगा ब्रो। बिकॉज सो व्हेन आई बिल्ट माई राइटिंग पोर्टफोलियो तो यही सीन था कि मॉन्स्टर्स की मुझे आदत वहीं से पड़ी थी कि मतलब फिर आप पूरा हफ्ता जागना पड़ता है। हाँ। और कौन किस में नहीं जागना पड़ता है यार, मतलब आप जब मैं ड्राइंग करता हूँ, जब मैं इलस्ट्रेशंस कर रहा होता हूँ, सो आई रिमेंबर काजी भाई
एक महीना था जिसके अंदर मैंने 30 इलस्ट्रेशंस के कमीशन ले लिए थे. आई वॉज ऑब्वियसली गेटिंग मनी, अल्हम्दुलिल्लाह, बट 30 मैन मतलब रोज़ बनानी है, रोज़ एक बनानी है, ठीक है. और उस दौरान मेरे भाई की शादी हो रही थी. सो मेरे छोटा कज़न है, वो घर पर आता था और वो लोग डांस वांस कर रहे होते थे, फुल सीन बना हुआ होता था, माहौल बना हुआ होता था, और मैं अमीरली बैठा हुआ कोने में हंसते मुस्कराते हुए काम भी कर रहा है. सही, बिकॉज आई हैड टू हैव दैट मनी एज वेल. मज़ा आ रहा है, नो डाउट मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहा हूँ, बट भाई सर दर्द होता था, आँखों में से आंसू आते थे, और उसके बाद फिर बैक में भी पेन होता था कि यार ये काम तो करना पड़ रहा है ना. पैसे आए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा काम हुआ, लोगों ने देखा. वो जो छोटा कज़न था ना मेरा, वो मुझे देखता था कि यार ये सारा, वो 5-6 ईयर्स का था, तो वो सबकी जो ना वो नकल करता था कि ये वाले भाई ऐसे करते हैं, वाले भाई, तो वो मेरी नकल ऐसे करता था कि अमीर अली भाई क्या करते हैं, तो बोल रहा है काम करते हैं. नहीं, वो ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग करके दिखा रहा है कि वो यहाँ पे शादी के दौरान उसने यही किया. तो यार मतलब आप किसी भी इंडिविजुअल को मिल लो, आप किसी भी एक ऐसे बंदे को मिल लो, आई वुड नॉट से आई एम सक्सेसफुल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी सक्सेसफुल पर्सन जिसको आप मिलोगे, वो क्या करता है, मेहनत करता है, रात को जागता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है. सो एक ऐसा बच्चा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, एक ऐसा बच्चा जो इस पर्टिकुलर चीज़ को, यानी अपनी एजुकेशन को लेकर, ही इज़ लाइक समवन हु फील कि ये मेरा राइट है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो है वो इसको सक्सेसफुली अचीव करूं. वो मेहनत करेगा भाई, वो अच्छी जीपी लेगा. और वहीं आते हैं ना, डिस्टिंक्शन भी आती है बच्चों की. काम ऐसा कमाल का काम करते हैं कि आपका दिमाग दंग रह जाता है. आप बोलते हो मैं इसका टीचर नहीं हूँ भाई, ये हमारे टीचर हैं. ऐसे भी होते हैं. लाइक आई यूज्ड टू सिट विद माय स्टूडेंट्स कि यार मुझे वाटर कलर सिखाओ भाई, ये तुम कितना फिट कर रहे हो, मुझे नहीं आता, तुम सिखाओ मुझे. सही है सर, क्या सर आप मतलब हाँ क्या हो गया भाई, सिखाओ मुझे. और मैं अभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ उन्होंने सिखाया मुझे. वो ओके, सो दैट्स ऑब्वियसली वेरी बिग ऑफ यू. और आपने बोला कि अभी हमें वापस आना है उस बात पे कि आप फुल टाइम टीचर क्यों ना बने, लेकिन उससे पहले आई ऑल्सो देन थिंक दैट वी नीड टू टेक अ मिनट to appreciate a space like IVS 100% for fostering that kind of art ना. कमाल यार, बहुत कमाल जगह है. देखें मैं मतलब इट्स बीन लाइक 9 years, तो आप थोड़े से वो हो जाते हैं, हाँ ठीक है सही है, बट यार कमाल जगह है वो. जितना आर्टिस्ट उसने क्रिएट किया है, कराची यूनिवर्सिटी एज वेल, जितना आर्टिस्ट इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने क्रिएट किया है हमारे सोसाइटी के अंदर, मुझे समझ में नहीं आता कि वो सारी चीज़ों को लोग कैसे जो है वो मतलब छोड़ कैसे सकते, इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि जिस लेवल के ऊपर आर्टिस्ट और फाइन आर्टिस्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आप इस वक्त खाड़ी जाएं, आप इस वक्त अल करम जाएं, आप इस वक्त किसी बड़ी आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी के फर्म जाएं, वहाँ पर आपको IVS के फुट मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. डेफिनेटली. अच्छा भाई, उसमें जो है ना एक चीज़ हम ज़ाहिर है ये हर किस नहीं बोल रहे हैं कि अगर किसी का मेंटल हेल्थ इशू है या अगर कोई नहीं कर सक रहा है तो वो बुरी चीज़ है किसी तरीके से. बट दैट डिस्क्लेमर टू वन साइड, आई थिंक किसी इंस्टीट्यूशन की डिग्री को इतनी प्रेस्टीज मिलती तब है जब वो मुश्किल होती है. राइट आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो और आप सुनते हो कि यार वो AKU से पढ़ के आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता, इंसान है. और ऐसा भी नहीं है कि वो बुरा नहीं हो सकता, इंसान है. लेकिन ऑन एवरेज यूल बी लाइक हाँ ठीक है इसकी एजुकेशन प्रॉपर हुई होगी. AKU में पौवा नहीं लगता, ऐसे ही, ठीक है ना. और एंड द सेम थिंग विद IVS. यार ये अगर मैं एक आर्किटेक्चर फर्म हूँ या मैं एक इवन ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर रहा हूँ कोई भी, और मैं देखूंगा CV पे कि यार IVS, आई विल बी लाइक ओके देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस दैट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन, सो दिस इज गुड. ऐसा ही है. देखो वो होगा तो बच्चा, हाँ सही है, उसने अपने टीचर्स का 5% या 1% आई से उसने सीखा होगा अपने टीचर्स से. पिछले 4 सालों के अंदर उनका एक्सपीरियंस तो नहीं हासिल कर सकता, वो तो ऑन फील्ड ही जाके करेगा, बट वो डिसिप्लिन हो चुका है. हाँ. उसको पता है सुबह को उठना है, हाँ, और शाम तक काम करना है और अपनी जिम्मेदारी लेनी है. सो इफ़ आई विल हैव टू हायर समवन फॉर माई इंस्टीट्यूट और इफ़ आई हैव एन एजेंसी, तो मैं कराची यूनिवर्सिटी या IVS के बच्चे को रखूँगा. उसकी वजह ही डिसिप्लिन है, उसकी वजह ही ये है कि उनके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होंगे.
कंपैरेटिवली मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बाहर से कोई बच्चा आएगा तो मैं बोलूँगा नहीं IVS है, लेकिन जो है वो कंपैरेटिवली देर बेटर। दूसरी चीज़ ये है काजी भाई कि IVS के अंदर ना एक इन्वायरमेंट है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक इन्वायरमेंट है। सो मैं अपने स्टूडेंट्स से अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर मुझे ऑप्शन मिलता है टू गो टू हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, बिकॉज उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, तो शायद आई वुड नॉट चूज़ देम, बट इन्वायरमेंट जो है ना उस पूरे इदारे का वो बहुत मैटर करता है। सो लेट्स से कि आपके पास आप एक दोस्त है आपका, सही है, यू आर फ्रॉम अ स्मॉल यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपका जो दोस्त है अच्छा दोस्त है, आप लोग रेजोनेट करके एक दूसरे से मिल गए, बट वो टेलर का बेटा है, सही है, सही। आप उसको बोलते हो कि यार मेरे पास एक बहुत अच्छा जो ना आइडिया है और हम लोग जो है ना वो एक सेटअप लगाते हैं, लेट्स ओपन अ बर्गर जॉइंट, ठीक है। वो जाता है, वो बोलता है यार मतलब मैं अपने अब्बा से बात करूँगा, तुम अपने अब्बा से बात करो, आपके अब्बा इज़ लाइक नॉट वेरी वेल्दी, नॉट वेरी साउंड फाइनेंशियली। क्या बोलते हैं यार नहीं मतलब वो तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन आइडिया इतना ज़बरदस्त है कि वो बच्चा बोलता है मैं अपने अब्बा से बात करता हूँ। वो जाता है, उसका अब्बा बोलते हैं बेटा मेरे पास तेरी फ़ीस देने के पैसे नहीं है, मैं तेरा बर्गर जॉइंट में कहाँ पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, बट यू आर स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी जहाँ पर एक बड़े अच्छे माहौल से भी लोग आते हैं, और आपकी दोस्त हो गई सलीम से ही एक लेट्स से इंडस वैली के अंदर, सही है। अब वो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर और सारी जो चीज़ें हैं, सो वहाँ पर एक बड़ा अच्छा तबके का बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, आप उसको बोलते हो कि ये सीन है, बर्गर जॉइंट खोलना है। वो बोलता है ठीक है मैं अपने डैड से बात करता हूँ। डैड से बात करेंगे वो, सही है। वो अपने डैड से बात करता है, डैड बोलते कितना पैसा चाहिए बेटा, मतलब अब्बू 40 लाख रुपए तक चाहिए, दैट्स अ लॉट बॉय, बुलाओ उसको। हाँ। वो सुनता है यार ये क्या पिच की है इसने, हाँ। ठीक है आई एम रेडी टू इन्वेस्ट फॉर सर्टेन इक्विटी। आप स्केल सोचो, एक 22 साल का लड़का बिजनेस कर रहा है बिकॉज ही इज़ अमंग दोज स्टूडेंट्स, इज अमंग दोज एनवायरनमेंट जहाँ पर, तो अगर आपको IVS का बच्चा ग्रो करते हुए दिख रहा है ना, सो इट्स नॉट जस्ट हिज स्किल्स, इट्स हिज कंपनी एज वेल, इट्स आल्सो एब्सोल्युटली। और अगर कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा आपको थोड़ा सा स्लो ग्रो करते हुए दिख रहा है, सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्किल, इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, इट्स द एनवायरनमेंट, इट्स द PR मतलब उसके इर्द गिर्द लोग ही नेटवर्क। अब आप सोचो काजी भाई, आपने एक बच्चे के साथ पढ़ा था, अब वो 40, अब आप लोग 40 के हो गए हो, ही रिजाइड्स इन इटली, ठीक है, और अब आप बोलते हो उसको यार सकलैन मैं आ रहा हूँ इटली, आओ ब्रो अब तुम्हें घुमाऊंगा मैं, सही है, यूर फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी या इंडस यूनिवर्सिटी या जो छोटे तबकों की यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, उसका फ्रेंड रहता नीपा चौरंगी पे, या अल्लाह ना करे मतलब वो ये सारी करीबी जो बनते ही वो है ना, लाइक अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँगा, सो हम लोग फाइनेंशियली वी वर नॉट वेरी हेल्दी फाइनेंशियली, सो ये सारे यहीं के थे, गुलशन, नाज़माबाद और सारे, वी वर नॉट समवन के जो अपने वेकेशंस जो छुट्टियां होती थी उसमें कश्मीर जाते थे हम लोग, जो मैं IVS में या इवन जो स्टूडेंट्स को देख रहा था वो यूरोप जा रहे होते थे, सही दिसंबर के एंड में दुबई चले जाते हैं। दैट्स जस्ट अ रियलिटी अमीर भाई, ये रियलिटी, और आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बुरी बात नहीं बोल रहे हो आप, दैट्स जस्ट अ रियलिटी कि देयर इज फाइनेंशियल डिस्पैरिटी, राइट, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट people from two different economic classes, one of them have more resources than the others, इसमें उनकी हुनर का कोई लेन देन नहीं है, might get a little more successful because of these privileges, हाँ, ठीक है, ये जो गिफ्ट उसको नेचर की तरफ से मिले हैं, या उनके वालिदैन की मेहनत है, जो भी है, जो भी आप जिस भी चीज़ को बोल दो ये जिम्मेदारी उसको दे दो, अल्लाह का करम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने एक बार ना इन दैट सेम वेन, so I studied from the University of Toronto. I asked them about their MBA program. मैं बड़ा चौड़ा हो रहा था ना, मैं वो या PhD करूँगा या MBA करूँगा, कुछ किया नहीं, लेकिन पूछने में क्या है, LRM करें। तो उनका जो MBA था, 1 साल का MBA would cost more than a 6-year degree. 1 साल का MBA, right? Would cost more. I'm not going to say numbers, लेकिन बहुत ज़्यादा would cost more than a 6-year degree in that same university.
आप बोल रहे हो ये क्या बात हुई, एंड एन MBA फ्रॉम एन Ivy League school would cost even more than that. So University of Toronto is a very good university internationally, right? But कुछ Ivy League schools थे उनका उससे भी ज़्यादा महंगा था. तो जाहिर है मतलब ठीक है आप पूछ नहीं सकते हो, जो बंदा आपको बता रहा होता है वो टीचर होता है, वो मतलब वो टेक्निकली एस्टैब्लिशमेंट का बंदा होता है, तो आप उससे पूछ नहीं सकते हो, लेकिन आपकी शक्ल पे एक चीज़ आ जाती है कि क्या है यार. हाँ, तो वो आगे से बड़ा कोई समझदार इंसान था, तो उसने पढ़ लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ. उसने बोला ये सोच रहे हो कि क्यों. मैंने बोला हाँ क्यों, मतलब ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो मैं किताबें ख़रीद के खुद पढ़ लूँ. तो बोला बेटा आप किताबें पढ़ने तो जा ही नहीं रहे हो ना, आप जो बाकी लोग आएंगे ये फीस दे के वो उस तबके के होंगे. एब्सोल्युटली. कि आपका एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन जाएगा. एब्सोल्युटली. देखिए मुझे ना अगर लाइक इफ़ आई हैव किड्स तो मैं उनको स्कूल या कॉलेज से इस वजह से भेजूंगा, जाओ बच्चों नेटवर्किंग करो. हाँ. ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा तरीक़ेकार है, पॉडकास्ट स्टार्ट करके नेटवर्किंग कर सकते हो, लेट्स डू दैट. हाँ. ये स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम, बीइंग फैकल्टी मेंबर सिंस लाइक लॉट ऑफ ईयर्स नाउ, हम एक हद तक दे सकते हैं. ठीक है, एक हद तक डिलीवर कर सकते हैं, एक हद तक समझा सकते हैं. वहाँ पर जो बाकी डेवलपमेंट, देखो भाई मैं आपके पास आता हूँ 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन आपके साथ वो सलीम और अली रहते हैं लिटरली 24 आवर्स. ठीक है, आप साथ ग्रो करते हो, आप बर्गर साथ खाने जाते हो, आप खाना साथ खाने जाते हो, फिर छोटा सा ट्रिप भी साथ करते हो. सो आप वो रिलेशन बना रहे हो. वो टीचर के साथ ये will never become a relationship with your teacher. And it shouldn't वैसे. हाँ वो होना भी नहीं चाहिए. आप यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो जाते हो अगर आप लोगों का रिलेशन है अच्छा है एक, लेकिन वो चीज़ जो अली और सकलैन के साथ बनी है वो तो अमीर अली के साथ नहीं बन सकती. क्योंकि सर अमीर अली हैं. क्योंकि वो रहा ही ऐसा है सिलसिला. तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया. और ये यूनिवर्सिटीज़ आर देयर टू मेक कॉन्टैक्ट्स, to create those bridges between people. वरना आप कहाँ जाकर किन लोगों से मिलेंगे, ऐसे ही भाई आप बड़े अच्छे लग रहे हो आप मुझसे बात करो, नहीं होगा. यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप लोगों के एक म्यूचुअल या आप कह सकते हो प्रोडक्टिव रिलेशन creates that safe environment ना अमीर भाई. It creates that safe environment where you know you're having lunch or whatever, दूसरा बंदा बैठा हुआ है असाइनमेंट कर रहा है, you get to talking. और कहाँ होता है especially in a city like Karachi, where else do you find these creative commons? एक T2F था वो शायद बंद हो गया, वापस खुला है शायद. 2-3 और जगह हैं ऐसी. नहीं हाँ बिल्कुल. आप देखो आई वॉज इन टर्की और मैंने अपनी स्केच बुक निकाली एंड आई वॉज ड्राइंग. हाँ लिटरली देयर वर मोर देन 20-25 पीपल जो ड्रॉप बाय, पिक्चर्स ली, नाम पूछा, वो इवन उनको ज़बान भी नहीं आती. सही है, बट वो अप्रिसिएशन जो है ना वो फ्रेयर हॉल पे बैठ के या मोहाटा पैलेस पे बैठ के नहीं होती है. वहाँ पर लोग आपको आकर बोलते हैं क्या कर रहा है भाई. हाँ. और ये हराम है. अल्लाह ठीक है. yeah. तो वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पर है ही नहीं. ऐसे इफ़ IVS और कराची यूनिवर्सिटी और कराची स्कूल ऑफ आर्ट अगर वो प्रोवाइड कर रही है so we should appreciate. हाँ. और एंड उम्मीद यही है कि या तो ऐसे और जगहें खुल जाएं. अभी you know I think नापा is doing good work. Arts Council में अच्छा काम हो रहा है. A-level colleges could come up, other universities could, जो भी है. But ये सब जो है ना ये फ्यूचर में बातें हैं. अभी जो है अभी तो यही है ना. अभी तो यही है. चलो ठीक है. Habib is doing good work. But I haven't been like attached with them in any kind. तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है. अमीर भाई, before we round up this conversation, एक चीज़ जो है आपने 2 बार मैं आपसे याद दिला चुका हूँ. लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज यू डू लाइक टीचिंग. यस. आपके अपने पर्सनल कोर्सेज भी हैं. सो ओके, सो यू टीच एट IVS. Yes. You teach at Karachi University. But then you also have your own private courses. Online courses. Online courses. So there is no physical classes. No. Physically, you'll find me at Indus Valley or Karachi University. And now only at IVS. And now only at IVS. Okay. And you enjoy teaching. Absolutely. So I love teaching. Full time क्यों नहीं? अच्छा, when I was in Iqra University, I did my masters from Iqra University. All my good teachers were visiting faculties. ठीक है. Interesting. और मैंने जब ये disparity देखी तो मुझे ये realize हुआ that the permanent teachers, most of the permanent teachers do it like a job. Very okay. ठीक है. वो सुबह उठते हैं, वो आते हैं,
सो उनका जो पर्पस है ना वो फेड हुआ है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेड हो रहा है. ऑल्सो बिकॉज it's so monotonous every day showing up to your same thing, so you don't make relationship like a visiting faculty does, क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए आता है. और वो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ थी दोनों के दरमियान वो ये थी that visiting faculties are getting on field experience, जबकि जो परमानेंट फैकल्टी है वो तो सारा दिन जॉब कर रहा है. उनका जॉब है, ठीक है, तो उनका जॉब है. आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या वो सही है, नहीं, बट आई डिडंट वांट दैट. मतलब आई यूज्ड टू टीच फोटोग्राफी एट IVS एज वेल बिकॉज आई प्रोफेशनली परस्यूड फोटोग्राफी फॉर 4 years. सही है? यस, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ. हाँ, माशाल्लाह से. तो मैंने तकरीबन 3 से 4 साल तक आई डिड फूड फोटोग्राफी, आई डिड वेडिंग फोटोग्राफी, तो मैं पढ़ाता भी था. देन आई क्विट फोटोग्राफी बिकॉज वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स मिल जाते थे मुझे और वो मुझे बोल रहे थे सर, वो यूनिवर्सिटी में मिल के बोलते सर वो तस्वीरें दे देना आपने अम्मी के साथ जो ली थी. तो इट वॉज नॉट समथिंग आई वॉज इन्जॉइंग, सो आई क्विट फोटोग्राफी वेडिंग वाली. तो जब आई स्टार्टेड गेटिंग क्लासेस फॉर फोटोग्राफी आई सेड नो, आई कैन नॉट टीच समथिंग आई डोंट परसू एज अ करियर. सही है? क्योंकि अब बच्चा जब मुझसे आता है और सवाल करता है ना तो मेरे पास जवाब नहीं होते. नहीं. सही है? नहीं. और आई एम नॉट इवॉल्विंग, आई एम नॉट ग्रोइंग. आप एक पुराना करिकुलम पढ़ा रहे हो. मैं पुराना करिकुलम पढ़ा रहा हूँ. सो आई पर्सनली फील कि परमानेंट फैकल्टीज के साथ अक्सर ये चीज़ होती है अनकॉन्शियसली, बट क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ करते हुए आ रहे हैं. दे नॉट लाइक, सोचे ना अगर मैं परमानेंट फैकल्टी होता तो मैं NFT एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता, मैं वेडिंग इलस्ट्रेशंस एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता. एक तरीके से आप कंफर्टेबल हो जाते, मैं कंफर्टेबल हो जाता, मुझे पता अच्छा ठीक है. और होता भी है, मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाता हूँ ना, जब मैं उस दिन घर आता हूँ तो मुझे लगता है मेरा दिन कंप्लीट हो गया है. लाइक आई फील फुलफिल्ड, एक अकम्पलिश्ड, ठीक है, विच इज़ गुड. लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए दिस इज़ नॉट राइट. अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर हो और आप इतने कंफर्टेबल हो गए हो, so you're not growing, you're not evolving. So this was the reason that I didn't opt for a permanent faculty thing. ऐसा महसूस हुआ कहीं ना कहीं जाकर कि हाँ अब हो जाना चाहिए. एंड आई इवन अप्लाइड एज वेल कुछ 5 साल पहले. लेकिन जो है वो फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार फिर मैं दूसरी चीज़ें कैसे एक्सप्लोर करूँगा. अगर मैं जॉब पे आ जाऊँगा तो फिर मैं दूसरी चीज़ें कैसे एक्सप्लोर करूँगा. सो दैट वाज समथिंग विच लाइक pulled me away from that. I think जो आप हाईलाइट कर रहे हो ना बात, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि ग्रोथ जो होती है ना वो डिस्कम्फर्ट में होती है. कोई बंदा सुकून से बैठ के बढ़ता नहीं है. नहीं बढ़ता. फिर आप सुकून से बैठे हुए हो ना, आप if you're here and you're there, I think that's the only way, or that's the only way I understand to grow. But एक और चीज़ भी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि if you're not in the field, you're going to give your students hypothesis, but you cannot experience. you cannot show them any kind of practical. हाँ ठीक है भाई बेटा इस तरीके से illustration कर देना. These are the rules of illustration. For instance, videography में 3-point lighting होती है. It's a rule, but you can also break the rule. Right? How am I going to show someone how to break the rule? मैंने खुद ही नहीं तोड़ा है इतने अरसे से. मैं खुद ही बैठा हुआ. आप रोज़ यही हो, ठीक है. गाजी भाई, जैसे जब इरफान भाई वाला वेडिंग इलस्ट्रेशन आया, आई वॉज टीचर एज वेल. ठीक है, मुझे डॉन पे बुलाया था, मुझे जो है वो समा पर आया, मैं कुछ 2 चैनल्स के ऊपर मैं गया. ठीक है, अब बहुत सारे अखबारों में अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो है वो आई शाया हुई. ठीक है, माई स्टूडेंट्स आर हैप्पी. वो मेरी तरह ही थ्रिल्ड थे. वो उन्होंने केक काटा जब मैं क्लास में गया. वो मैं परमानेंट फैकल्टी रहकर कैसे अचीव करता, मुझे ये होता है. ठीक है, जब इकरा वाला कार्ड आया, इकरा और यासिर वाला कार्ड आया और वो फिर न्यूज़ में आ रहा है, तो मेरे स्टूडेंट्स यूज टू टेक पिक्चर्स एंड सेंड इट टू मी कि सर हमने ये देखा आपका काम. मैं ये कैसे अचीव करता. लाइक इफ़ आई गो टू माई क्लासेस राइट लाइक नाउ, आई टॉक अबाउट NFTs एज वेल ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम. और जब हम वो बच्चे काम कर रहे होते तो मैं उनसे NFTs के बारे में, मैं उनसे वो कैसे बात करता. अगर मैं परमानेंट फैकल्टी ही होता तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं कि ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती, बट कंफर्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक जाती.
So this is the reason I feel it's not right for me at least. It might be right for other people. ऐसा नहीं है कि गलत है, और ऐसा अगर सारे बंदे यही बोलेंगे हम परमानेंट नहीं होना तो भाई इदारे ही ख़त्म हो जाएंगे. नहीं हाँ अमीर भाई आई थिंक दिस इज़ अ गुड फुल सर्कल मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, वेयर हमने शुरू भी बात इससे की थी कि देयर इज़ नो वन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस, सही ना, एंड देयर इज़ नो वन वे फॉर एवरीवन टू बी. लेकिन यू नो वी जस्ट हाईलाइटिंग सर्टन थिंग्स कि अगर आपका काम देख के ये सोचे बंदा कि यार ये मेरा पैशन है, that's a little wrong. That's a little erroneous. Wrong भी नहीं, it's a mistake. क्योंकि आपका पैशन उस चीज़ की बुनियाद है, जिस बुनियाद पे वो चीज़ बनाई जा रही है, that is your passion. Your passion isn't the thing itself, right? So that's all we're saying, and I think वही वाली बात है that you know some people really should be full-time teachers. You know? Absolutely. क्योंकि अगर I've seen teacher who are gritty, who wants to like have their children जो कि बहुत ग्रो कर रहे हों, they know the names. Like I am not that kind of person. मुझे अपने स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं रहते. सही है, fair. सही है. मैं उनकी शक्ल भी भूल जाता हूँ. सही है. शुरू में अगर मैं 1 साल या 2 साल तक मैं पढ़ाता था तो आई यूज़ टू नो द नेम. नया था ना, मैं भी स्टूडेंट ही था उस वक्त जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया. सो दे वर लाइक माई फ्रेंड्स. सही है. बट देन आफ्टर सम टाइम आई वॉज लाइक यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं उनसे कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, मैं उनसे कुछ सीखने जा रहा हूँ, मैं उनको कुछ सिखाने जा रहा हूँ. आई लाइक टीचिंग. I don't like them. I like teaching. If they're willing to learn from me and if they're willing to teach me something, बहुत अच्छी बात है. अच्छी दोस्ती होगी, अच्छी चिलिंग होगी. अगर नहीं है, I don't know you man. I don't need to know you. आपकी फैमिली क्या है, आप कहाँ से आते हो, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, I don't give a fuck about you. ठीक है, आप मुझसे सीखने आ रहे हो and if you're ready to teach me as well something, आओ भाई बैठो, साथ बैठते हैं. अमीर भाई पता है क्या, दैट्स सो इंटरेस्टिंग एंड वही वाली बात है, यू आर यूजुअली such a calm person, right? But there was that little rise in even aggression कि यार देखो, I don't need to know you. I don't need to give a fuck about you. I think it's super interesting because हमारे मुआशरे में generally and especially अब जिन बच्चों को आप शायद IVS में पढ़ा रहे होगे because of the fee structure and all those things, थोड़ा सा privilege आता है, but there is this level of entitlement कि मुझे तो ये मिलना चाहिए. You should give a fuck about me, you know? नहीं यार, you shouldn't feel entitled to that. हाँ, people take liberty ना, गाड़ी चलाते हुए, interact करते हुए, डॉलमेन मॉल पे उतरते हुए, हर जगह people take liberty with other people's spaces, with other people's time, right? मैं आगे मैं हॉर्न मारूंगा आपको पीछे से अगर आप टाइम दे रहे हो. भाई वो किसी मजबूरी में हो सकता है. सही बात है. लेकिन एक साइकिल चल रहा है, हर किसी को जो है अग्रेशन दिखानी है, हर किसी को एंटागनिज्म दिखाना है. Everyone needs to encroach on the other person's liberty. You don't understand why. लाइन में लगते हुए मौत आ रही होती है हमें. मतलब ऐसा है कि दूसरा बंदा जो है मेरे जो गर्दन पे बाल है ना वो गिन ले. भाई तुम क्यों चढ़ा हुआ है मेरे पीछे? क्यों? सही बात है. मेरा बैकपैक क्यों बने हुए हो? थोड़ा वेट कर लो. कहाँ जा रहे हो? कहाँ पहुँचते तो कहीं नहीं पहुँचते. कहीं नहीं पहुँचते तो फिर जल्दी किस बात की है? तो काजी भाई सीन यही था यूनिवर्सिटी के अंदर ना. लाइक I made a lot of friends. Okay, I made a lot of friends. And teaching wise? Teaching wise, ठीक है. There are students who became very good friends. Most of them were on university premises. वहीं तक रहे. जब यूनिवर्सिटी से आगे चले गए तो ख़त्म हो गया, जाहिर सी बात है. They were busy. I was busy. तो हम मिले नहीं कभी, तो बातचीत ख़त्म हो गई. But I learned a lot of things from them. And there were students I don't even remember them. सही है. So it's fine. मतलब वो every one of them are special. ठीक है. Not to me. That's it. सही है. That's it. It doesn't reflect कि यार आप अच्छे नहीं थे इसलिए मुझे याद नहीं रहेगा. आप अच्छे मेरे लिए नहीं थे. It doesn't have to be like कि यार आप उस चीज़ को बुरा समझो. So ऐसा होता है कि कभी कभार जो है बच्चे आते हैं और वो बात करते हैं and I don't know their names. ठीक है. आई फील बैड. ऐसा नहीं है कि इतना मैं मीन या इतना मैं जो है वो हार्टलेस हूँ, बट यार मतलब नहीं हुआ यार. कोई कनेक्शन बना ही नहीं जिसकी वजह से मुझे आपका नाम हाँ मुझे आप काम से याद हो, आप अपनी हरकत से याद हो,
लेकिन नाम याद रखकर मैं क्या अचीव कर लूँगा, या वो चीज़ें हम कैसे फुलफ़िल कर लेंगे अगर आपका नाम याद होगा मुझे। तो वो वाली चीज़ें जो आपने बताया ना कि पीछे से वो हॉर्न बजा रहा है, तो वो एक बच्चा जब आता है और वो इतना इंटाइटल्ड है, इतना प्रिविलेज्ड है, और उसके बाद उसको ये लगता है कि यार ये 4 महीने से मुझे पढ़ा रहा है, ही डिडंट इवन नो माई नेम, तो वो वहाँ पर जो है ना वो लोग थोड़े इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं कि यार सर यू डोंट इवन नो माई नेम, इट्स रॉन्ग बट ब्रो नो इट डजंट। पर भाई वही वाली बात है ना, आई थिंक इट डजंट मैटर। जो हम पहले बात कर रहे थे, औकात से ज़्यादा जब आपको कामयाबी मिल जाती है ना, यू डोंट नो हाउ टू, वही वाली बात, यू आर सो इंटाइटल टू दैट रिस्पेक्ट कोट एंड कोट कि इस बंदे को मेरा नाम याद होना चाहिए। क्यों? हाँ, आपने क्या किया, आपने क्या किया, और उसका काम क्या है उस बंदे का? उस बंदे का काम है आपको एक्स चीज़ सिखाना, ठीक है ना। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस डिफरेंट इसलिए था बिकॉज आई वाज इन अ राइटिंग डिग्री। राइटिंग डिग्री बहुत पर्सनल होती है बिकॉज आप दूसरे बंदे का काम एडिट कर रहे हो तो महीनों डिफरेंट। बट मेरी दूसरी द अदर हाफ ऑफ माई डिग्री वाज फिलोसफी। 500 लोगों का लेक्चर होता था। वो बंदे ने मुझे एक डिस्टिंक्शन दी हुई है, उसको मेरा नाम भी याद नहीं है। क्यों? उसने एक मशीन के अंदर डाला, मशीन ने बोला कि हाँ इसका अच्छा पेपर है, दे दी। भाई मेरे साथ हुआ है ये। सो आई डिड माई मास्टर्स डिग्री, थोड़ा करीब, हाँ ठीक है, आई डिड माई मास्टर्स डिग्री और मेरा थीसिस लगा हुआ है, सही है, और उसकी प्रेजेंटेशन हो रही है। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेंट अवे ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन, सही है। आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड कि मतलब बहुत गुस्सा आ गया था। आई वॉज नॉट एबल टू प्रेजेंट प्रॉपरली, सही है। उसके बाद एक और टीचर थे, वो भी उठ के चले गए और मैं गया, मैंने फड्डा किया कि भाई ये क्या है, ये क्यों हुआ। दूसरे टीचर से, उनके साथ नहीं। और मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने 1 साल लगा के अपना थीसिस प्रोड्यूस किया है और उसके बाद आपके पास उसको देखने के लिए 5 मिनट भी नहीं थे, सही है। बट व्हेन आई बिकेम अ टीचर और जब वो चीज़ें मैंने फेस की, सो आई गॉट टू नो कि यार वो फैक्ट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसके साथ मेरा क्या रिलेशन था, लाइक व्हाट डिड आई डू जिसकी वजह से वो मेरा थीसिस बैठ के देखेंगी। उसके पास और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। आई वॉज नॉट समवन स्पेशल, आई वॉज नॉट समवन हु डिड एनीथिंग फॉर देम, सो आई शुडंट बी फीलिंग बैड अबाउट इट। अगर तो मैंने उनके लिए कुछ किया होता या अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी अचीव की होती तो आज उनको मेरा नाम पता है। सही है, उस वक्त नहीं पता था। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप ख़ुद क्या करते हो जिसकी वजह से आपके टीचर्स या आपके दोस्त या आपके यार आपको जानने लगें, सही है। सो वो अगेन वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या है, एंड व्हाट इज़ अ बेसिक थिंग वी डू जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं। That's it. अमीर भाई, ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू। सेम ईयर, आप जो है बहुत मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है जब मूड हो आ जाया करो, वैसे ही हम गुफ्तगू करते हैं। वही वाली बात है ना, लोग बोलते हैं कि इस पॉडकास्ट में टॉपिक क्या था। ब्रो मुझे क्या पता टॉपिक क्या था, मुझे अभी भी नहीं पता टॉपिक क्या था। वी जस्ट टॉक, मुझे भी नहीं पता। वी जस्ट स्पोक ना, वी जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन, दैट्स ऑल इट इज। कोई चीज़ आपको क्या ज़रूरत है, कोई चीज़ शाउट आउट करना चाहोगे? कोई भी NFT की सोर्सेज हों, NFT के बारे में अगर सीखना चाहें? I would just say कि at least bro explore metaverse, explore NFT, explore cryptocurrency. This is the future. हाँ, ठीक है। और if you don't understand it, if you don't like it, that's fine. But हमने जिस तरह बात की बार बार कि डिस्कम्फर्ट के बाद ही तो गेन है ना। हाँ, so तो अच्छा, बट एक तो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज ऑब्वियसली टू फॉलो रामेश एंड हिज NFT बज़ चैनल। लेकिन और कोई स्टार्टर के लिए देयर आर चैनल्स लाइक NFT वर्स, NFT बज़ इज रामेश यूट्यूब चैनल। देन स्टार्ट creating more followers on Twitter and start exploring Discord. और उसके अलावा आपका इंस्टाग्राम करना चाहोगे आप? मेरा इंस्टाग्राम पर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो बोलो फिर क्या? So I don't post a lot of things on my Instagram about NFTs, but you'll definitely find very good art on my Instagram. Alhamdulillah. हाँ, Amir, it's Amir
अली ज़ाहिर. अमीर अली ज़ाहिर. यस. मैं लिंक दे भी दूंगा वैसे. यूट्यूब आपने मैं भूल गया अपना इंस्टाग्राम क्या था. ऐसे ही तो होता है. यही तो. और आपका NFT का काम वहाँ पे होता है. द आर्ट वर्क यू मेक ऑन ट्विटर. आई यूजुअली मेक फैन आर्ट्स राइट नाउ. लाइक अभी बहुत ज़्यादा फैन आर्ट्स वगैरह वाली चीज़ कर रहा हूँ. बट हाँ, जब बोर हो जाऊंगा तो चेंज कर लेंगे. नहीं, कोई मसला नहीं है. तो इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है. ट्विटर पे भी है. ट्विटर पर इट्स अमीर अली ज़ाहिर. अमीर अली ज़ाहिर ऑन ट्विटर एंड ऑन इंस्टाग्राम. एंड सेम. यूट्यूब नहीं बनाया आपने? यूट्यूब नहीं बनाया मैंने. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. एंड योर कोर्सेज इफ पीपल वांट टू बाय देम. यस, आई हैव लाइक 2 कोर्सेज ऑनलाइन. इसके अलावा देर आर 2 कोर्सेज जिसके अंदर आप रजिस्टर करके यू विल हैव मी ऑन वीडियो कॉल्स एवरी वीक. हम आपके काम के ऊपर क्रिटिक करते हैं. एंड देन देर इज़ 1 मोर कोर्स कमिंग अप. It's about wedding illustration, how I started my journey and how you can make a wedding illustration. Inshallah. और ये सब जो है कहाँ पे होता है? I teach stuff. All of it is on IT stuff. All of this is on IT stuff. आमिर भगत के आप या IT stuff के वो पेज को follow कर लो. All of that exclusively. Yes. Exclusively, and I will give links to all of that stuff. Perfect. Ameer Ali, Qazi Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.